Hello students, so today we are going to deal with poverty as challenge. This is the fourth part of this chapter. So here we will discuss about the global poverty scenario. So there has been a substantial reduction in the global poverty. So it is marked with the great regional differences. Okay, so here we can see the World Bank as living on the less $1.90 per day, because here through the estimate they have make the criteria of it of the poverty कि किस तरीके से जो है poverty को पूरे globally the World Bank used the uniform standard for the poverty line. So you can see $1.90 per person per day to compare the whole world. Okay, पूरे वर्ल्ड की poverty को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट इसमें है poverty डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि I'll just explain it from the here. Okay, so in China, number of poor in China has come down 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015. So you can see how much it declined the condition. And the Southeast Asian countries also, जैसे कि म्यांमार, सिंगापुर, as a result of rapid economic growth. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली जो है पोवर्टी डिक्लाइन होगी. एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सेकेंड इज कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. साउथ एशिया here India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and Bhutan. So here the decline has also been rapid, because here approx 34% poverty level you can see in these countries. So through this graph, students, you can see it, this graph, it is in your book. So here you can see countries of South Africa. साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हो here. So you can see this, it has shown by this color. So here you can see poverty in fact declined from 51% in 2005 to 41% in 2015, right? And then here you can see, and then in Latin America the ratio of poverty has also declined. पहले से ये लोग वैसे ही कम गरीब थे, और अब जो है उसमें से भी काफ़ी सारे जो पुअर पीपल वर देयर वो भी पोवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं. सो 10% इन 2005 टू अब नाउ यू कैन सी 4% इन 2015. And the new substantial sustainable development goals of the United Nations UN proposes ending poverty of all types by 2030. So it's going to be trying to keep the level up, all the sections especially targeted in poverty, condition of poverty, इसको डिक्लाइन करने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इज़ कॉजेज़ ऑफ पोवर्टी. ओके, सो हियर व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ पोवर्टी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंडीशन जो है, पीपल आर वेरी पुअर, सम ऑफ इन सम स्टेट्स, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में भी मैंने आपको बताया था. सो देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर द वाइड स्प्रेड पोवर्टी इन इंडिया. 1993 टू 94 के जो आसपास है, लगभग 47% पीपल वर बिलो द पोवर्टी लाइन.
लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दैट टाइम ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट. थ्रू दिस what happened, people was unemployed and Indian industries were discouraged, जिससे कि क्या हुआ, पीपल वर जॉबलेस. अब वो क्या हो गया, जो जिन लोगों के पास काम था उनसे भी काम क्या हो गया था, छिन गया था. ठीक है. सो हेयर हम ये कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी. सो those who were doing earlier job in work in industries and all, उनकी जो पेमेंट है वो, उनकी जो ग्रोथ है, लो ग्रोथ रेट हो गई एंड इनकम भी लो हो गई. ठीक है, इनकम ऑल्सो लो. सो आफ्टर दैट वन मोर थिंग क्रिएट्स विच वॉज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो ये सारी चीज़ें इट वॉज मेकिंग लाइक अ साइकिल. ओके, साइकिल ऑफ दिस वी कैन से cycle of poverty, right? Next is fruits of green revolution. It is, students, you have to read this book. Okay, you just read it. So next इसमें है fruits of green revolution was limited to some parts of India, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन उतना चला नहीं. ओके, सो इट वाज लाइक अ चैलेंज, लाइक फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश. तो वहाँ तक ये चीज़ पहुँची नहीं थी, वहाँ पे इस तरीके का कोई रेवोल्यूशन हुआ नहीं, तो वहाँ के लोग जो थे वो गरीब रह गए. ओके, एंड दे स्टार्टेड माइग्रेट टू बिग सिटीज़. माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स कि जब पीपल स्टार्ट टेकिंग मूव टू अनदर सिटी, तो वहाँ क्या होता है, इस सिटी में सपोज इस विलेज से दे आर माइग्रेटिंग. ओके, दे माइग्रेट टू दिस बिग सिटी. सो व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं आने लग जाते हैं. सो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. सो पीपल माइग्रेट एंड स्टार्टेड डूइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉब. अब इंडस्ट्रीज़ तो वैसी फेल्ड हो गई ना, इंडस्ट्री ऑल्सो डोंट हैव नाउ जॉब्स टू गिव देम. सो तो ये और वहाँ पे कुछ और काम करने लग जाते हैं, जैसे कि चाय की दुकान खोल ली, ठीक है, या फिर डेली वेजेस में कहीं काम कर लिया, किसी शॉप्स में काम कर लिया. सो इस तरीके से जब वो काम करते हैं तो उनकी इनकम फिर से लो हो जाती है. ओके, इनकम लो हो जाएगी एंड दे कुड नॉट अफोर्ड अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. सो जिससे फिर से वो पोवर्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, now next point is huge income inequalities in the another reason of poverty. तो inequalities भी है, differences होते हैं इनकम में, लाइक मैन एंड वीमेन के बीच में. ठीक है, social cultural and economic factors are also responsible for poverty line. सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैसे, जैसे कि इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ओब्लिगेशंस एंड observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money on this type of like जैसे कि कोई श्राद्ध हो गया, तो उसमें लोगों को क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा खर्चे करने होते हैं ना. जैसे कि किसी का नामकरण हो गया, तो बहुत सारी ऐसी रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं जिसमें लोगों को टाइम टू टाइम स्पेंड करना होता है. तो जितनी उनकी अर्निंग नहीं होती है, जितना वो कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है. ठीक है, सो हियर जैसे कि आप देखते हैं इन हिंदुज़म, यू कैन सी इन एवरी मंथ बहुत सारे फेस्टिवल्स हो जाते हैं, तो उन फेस्टिवल्स को, उन रिचुअल्स को भी उनको फुलफ़िल करना होता है. ठीक है, सो दीज आर द सम सोशल ऑब्लिगेशंस एंड रिलीजियस सेरेमनीज जिसमें उनको पैसे खर्च करने होते हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल फार्मर्स. ओके, सपोज कोई एक फार्मर है, सो फार्मर हैव टू स्टार्ट हिज वर्क, लाइक he has to start farming and all. So उन्हें क्या ज़रूरत होती है, he need money in the beginning, he need money to buy or agricultural inputs, like कौन कौन सी चीज़ें, seeds, fertilizer, pesticides. So
रिक्वायर्ड, ओके, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है. सो सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स दे बोरो, तो इनको क्या होता है कि इनकी सेविंग तो होती नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको बोरो करना पड़ता है, कहीं से पैसे उधार लेने होते हैं. अब इन दिस कंडीशन इफ़ द फार्मर इज़ अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पोवर्टी, दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस. जो कि इंडेप्टनेस मीन्स कि जो वो व्हेन दे टेक लोन, जब वो लोन लेते हैं तो उस लोन को जब वो नहीं चुका पाते तो वो क्या करते हैं, कहीं और से दूसरा लोन ले लेते हैं. अब उस दूसरे लोन को लेने के बाद बिकॉज कोई सेविंग तो है नहीं और उनकी इनकम तो सेम है ना, इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये लोन के ऊपर लोन जब उनके ऊपर लग जाता है तो इट इज़ कॉल्ड इंडेप्टनेस. डेप्टनेस में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा मीन्स पूरी लाइफ जो है दे स्पेंड देयर लाइफ होल लाइफ टू रिपे द लोन्स. ओके, सो ये जो इंडेप्टनेस है ये आप 10th क्लास में स्टडी करेंगे. सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इन बोथ, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पोवर्टी. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ पोवर्टी. Next is anti-poverty measures. Students, this is anti-poverty measures. तो इसमें क्या होता है, पोवर्टी है, इस गरीबी को कम कैसे किया जा सकता है. सो देर आर 2 ways टू मेजर पोवर्टी. पहला तो हम कह सकते हैं कि वी कैन डू promotion of economic growth, and the second is targeted anti-poverty program. First is promotion of economic growth. Means here we can economic growth स्टार्टिंग में बहुत लो थी. पहले क्या था कि ग्रोथ जो है धीरे धीरे हो रही थी. फिर इन 1980s के बाद आफ्टर 1980s इट स्टार्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा. तो अप्रॉक्स 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s तक के बीच में 6% जो है ग्रोथ इंक्रीज़ हुई. नाउ फॉर इफ़ इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, इससे अगर जब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुई इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि गुड एजुकेशन, पीपल गॉट गुड एजुकेशन, पीपल गेट गुड जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़. इवन वीमेन को भी लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वीमेन को भी एक प्रिविलेज मिल गया कि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिला. ठीक है. एंड देन सेकेंड इज़ टारगेटेड एंटी पोवर्टी program. So here policies and programs is directly or indirectly targeted to the reduce poverty. कि किस तरीके से poverty को कम किया जाए, ये कुछ policies and programs के थ्रू. लाइक जैसे कि सरकार ने बहुत सारे programs लॉन्च किए, लाइक जिसमें आपका है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी. ओके, सो हियर यू कैन सी सो जैसे कि इनमें है आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर education unemployed youth in rural areas and small towns, especially targeted to the small areas. They are helped in the setting up small business and industries. Next is rural employment generation program, which is known as REGP. It was launched in 1995. इसका मेन एम क्या था इस प्रोग्राम का, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, खुद से अपना कोई रोज़गार शुरू किया जा सके इन रूरल एरियाज़. ठीक है, ये भी रूरल एरियाज़ के लिए ही था. टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब. इसमें मेन क्या था कि 25 लाख नई जॉब्स को दिया जाए. नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY. It was launched in 1999. So the program aims to bring the assist families, poor family above the poverty line, जो poverty line से above आते हैं, तो उनको organizing them into the self help group. ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, दे मेड अ ग्रुप, और उसमें क्या किया जाता है, दे कलेक्ट सम मनीज, और जो कलेक्शन होता है मनी का उसको एक ऐसे पर्सन को दे दिया जाता है जिससे रिक्वायरमेंट होती है. फिर ये जो है एक सर्कल की तरह चलता रहता है. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री
ग्रामोदय योजना PMGY. It was launched in 2000. So student, इसमें आपको mainly you have to learn when this program, when this policy is launched. Okay, so additional central assistance is given to state for basic services such as primary health, primary education, rural health shelter, रूरल ड्रिंकिंग वाटर. तो ये सारी फैसिलिटी थ्रू दिस, ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत दिया गया. ओके, नेक्स्ट इज अंत्योदय अन्न योजना. स्टूडेंट्स, दिस इज रिलेटेड टू योर नेक्स्ट चैप्टर फूड सिक्योरिटी, जो आप ये आपका डिलीट हो चुका है. ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स वर देयर. सो थ्रू दिस दीज ऑल प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने एक हद तक जो है टारगेट किया था. दिस वर द टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस अहेड. चैलेंजेस अहेड जो क्या है, ये नो डाउट, क्योंकि पॉवर्टी एक हद तक सर्टेनली डिक्लाइन, बट रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंजेस. यहाँ पे क्या है कि मोस्ट बड़ा चैलेंज क्या है, डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी. ठीक है, विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ अमंग दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में भी आप इस डिफरेंसेस को देख सकते हैं. और इसके अलावा वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स लाइक ST एंड SC कैटेगरीज. ओके, एंड हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस. लेकिन इन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं. सो इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू this would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, लोगों को free education दे करके, declining population को थोड़ा सा डिक्लाइन करने में. ठीक है, जो ग्रोथ हो रही है वो सेक्शन जो है बहुत वीक है, क्योंकि इन सारे सेक्शंस को अगर हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया सो ऑब्वियसली वी विल ओवरकम फ्रॉम दिस चैलेंज. ओके, सो लिमिटेड जो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है, इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सटेंशियल लेवल. ठीक है, अबाउट अ मिनिमम सब्सटेंशियल लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग. तो इसमें क्या है कि नीड फॉर ब्रॉडनिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी, कि कैसे मीन्स 2 टाइम्स का खाना सभी के पास है, बट कुछ और पॉइंट्स है जो सभी के पास नहीं है. जैसे कि एजुकेशन, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सबको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी. तो पॉवर्टी को एक ऐसा टारगेट लेकर के कंटिन्यूसली जब हम उसे ट्रेस करेंगे तभी हम कुछ हद तक जो है पॉवर्टी को कम कर पाएंगे. बट रेस्ट इट्स अ काइंड ऑफ मूविंग टारगेट, क्योंकि कभी आज ये सेक्शन अगर पुअर है तो मे बी ये वाला सेक्शन पुअर हो जाए. तो यहाँ पे ये रोटेशन चलता रहता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मूविंग target. Okay, so this chapter is also over now, and thank you so much students.